جبکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دورے ظاہری میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدینہ طیبہ تشریف لائے، جو حکمت کا پیشہ کیا کرتے تھے، جو حکمت کا فن جانتے تھے، جو حکمت کو اپنا کر کے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، مدینہ طیبہ میں آئے اور آ کر کے یہ خدمت یہاں انجام دینے کے لیے بسیرا کر لیا۔ ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بوریا بسترا باندھ لیا ہے، مدینہ شریف سے کوچ کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے تھے، کہاں جانا ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں مدینہ طیبہ میں آیا تھا، اس لیے آیا تھا کہ شہر مصطفیٰ میں جا کر کے میں لوگوں کی خدمت کروں گا، لوگوں کو جو بیمار ہے ان کا علاج و معالجہ کروں گا، لیکن میں نے یہاں یہ دیکھا ہے کہ کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا۔ رسول اعظم، طبیب اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قوم بیمار نہیں ہوتی ہے جو بھوک لگنے پر کھاتی ہے اور بھوکی ہی اٹھ جاتی ہے۔ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا حضرت علامہ ڈاکٹر ناظم رضا صاحب قبلہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بولو آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو پھر سمجھو، آج آپ کو میں صحت کی کنجیاں عطا کر کے جانے والا ہوں، کیونکہ جو میں آپ کو عطا کر رہا ہوں اس میں کوئی میری بڑی بات نہیں ہے، بلکہ یہ فیضان غوث الاعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کی صحت اچھی رہتی ہے، آپ ایک صحت مند انسان رہنا چاہتے ہیں، تو میری ہر گفتگو کا گوشہ آپ کے لیے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے جب چڑیا چن گئی تھی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی اچھی صحت کی بقا کے لیے ہم کو کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے، کب کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، ہمیں ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کی ہر شے کا علم دیا ہے، علم حکمت بھی دیا ہے، طب نبوی بھی عطا کی ہے، میڈیکل سائنس بھی عطا کیا ہے۔ آج سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ عورت مہندی لگائے گی، مرد کو مہندی لگانے سے نقصان ہوگا۔ یہ آج کون بول رہا ہے؟ آج سائنس کہہ رہا ہے، لیکن سائنس نے آج کہا ہے 1450 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ عورتیں مہندی لگائیں، ان کی زینت ہے، مردوں کے لیے مہندی لگانا حرام قرار دیا گیا۔ بے شک۔ کبھی سوچا ہے ایسا کیوں ہے؟ کبھی سوچ پائے کہ ایسا کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں زینت کی وجہ سے منع کیا گیا کہ مردوں کو زینت آئے گی۔ میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات نہیں مان لیتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی بات سنو، مہندی کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، عورت لگائے گی تو اس کی شہوت ٹھنڈی رہے گی، مرد لگائے گا تو وہ نامرد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت خوب۔ سوچا مرد اگر مہندی کو 40 دن لگاتار لگا لے تو وہ مرد جو مرد کامل ہے وہ نامرد ہو جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے 1450 سال پہلے، مصطفیٰ جان رحمت نے 1450 سال پہلے یہ پیغام دے کر کے بتا دیا کہ عورتیں مہندی لگائیں گی، مردوں کو مہندی لگانا حرام ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کو آ رہی ہوگی نا، آپ کو آ رہی ہے، آپ بھی لوگ سن لیجئے۔ سنیے، میں آج کچھ ایسے رموز اور ایسے اسرار کھولوں گا، آپ کہتے رہیے لوگوں سے سونا مت پہنو، لوگ مانیں گے؟ آپ کہتے رہیے سونا نہیں پہننا ہے، لوگ کہیں گے یہ تو مولوی صاحب ہے، ان کا تو کام ہے، یہ تو پتہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ سسرال سے مل رہی ہے سونے کی چین تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ سسرال سے سونے کی انگوٹھی مل رہی ہے بیت المنت سے، بیت المراد سے، تو ہم یہ سونے کی انگوٹھی کیوں چھوڑ دیں؟ ہم یہ چین سونے کی کیوں چھوڑ دیں؟ زنجیر کیوں چھوڑ دیں؟ آؤ پیارے ہم سمجھاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عورتوں کو سونا پہننا جائز رکھا گیا، مردوں کو حرام رکھا گیا، اس لیے کہ سونا پہننے سے مردوں کو نامردی ہو جاتی ہے۔
पहनो है सोना। अब जिसे नामर्द बनना है वो पहनेगा। मौलवी साहब की बात समझ नहीं आ रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत के जौहर को लुटाने के लिए तहरीक अहले हिकमत को पैदा फरमा दिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहरीक अहले हिकमत, डॉक्टर नाजिम रजा साहब किबला बरेली शरीफ। अभी मैं मर्दों की खबर ले रहा हूँ, थोड़ी देर में मुझे खवातीन की भी खबर लेना है। एक भी अगर मेरी बहन आज के इस किताब को मुकम्मल सुनकर के चली गई तो मैं ये चैलेंज और गारंटी के साथ कहता हूं कि 80 साल की उम्र में भी उसको सजदा करने में परेशानी नहीं आएगी। घर जन्नत का गहवारा बन जाएगा। आज मैं कुछ बातें करने के लिए आपके सामने हाजिर आया हूँ। कुछ ऐसी बातें, आपने दीन की बातें बहुत सुनी हैं, सुनते ही रहते हैं। मैं आपको दीन की बात में हिकमत क्या होती है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मर्द को सोना पहनना हराम है। किस लिए हराम है? मैं पहुंचा एक मर्तबा एक सुनार की दुकान पर, और सुनार की दुकान पर जब मैं गया तो मेरी खातून ने मन्नत मेरे साथ की थी। उन्होंने जो लेना था वो ले लिया। मैंने देखा कि गोल्डन फरोश सोना का बेचने वाला 5 उंगलियों में 5 अंगूठी पहने हुए हैं। ये तजर्बा बता रहा हूं मेरे मुंह से। 5 उंगलियों में 5 अंगूठियां पहने हैं, साथ में मोटी चेन सोने की पहने हुई है। जब मेरा सौदा हो गया, मैंने जो खरीदना था वो खरीद लिया, मैंने उसको पैसा दे दिया, तो मैंने कहा यार मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं एक तजर्बा करना चाहता हूँ। बोले पूछिए। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि आप अब वालिद बनने के लायक नहीं रहे होंगे, आप की मर्दाना ताकत जाती रही होगी। उसने कहा आप कौन हैं? मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, एक हकीम हूँ। कहने लगे आपको कैसे पता हुआ? महाराज आप बैठिए तो जरा सही। अरे गुरुजी आप बैठ तो लीजिए। आप कैसे जान गए हैं? मैंने कहा कि मैंने नहीं जाना है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत ने हमको चुनवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत ने हमको चुनवा दिया है। हिकमत ये है कि जब सोना मर्द के जिस्म से टकराता है तो उसके अंदर मर्दाना ताकत की कमी हो जाती है। अल्लाह। और वहीं दूसरी तरफ सोने के अलावा जब हमारी बहन कोई चीज पहनती है तो उससे उसकी शोहरत बढ़ती है। इसलिए औरत को सोने और चांदी के अलावा लोहा, पीतल, तांबा, मेटल हर चीज को पहनना मना किया गया, इसलिए कि औरत की शहवत को काबू में रखना है और मर्द को मर्द कामिल बनाना है। इसी का नाम मजहब इस्लाम है, इसी का नाम हिकमत है, इसी का नाम सुन्नत है, इसी का नाम शरीयत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक माशाअल्लाह। बहुत सुनो, अब कुछ और बातें सुनो, अभी और मजा आएगा। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजकल हर घर में औरत बीमार मिलती है, मिल रही है। ये आपकी ठीक है, अगर ठीक है तो मुबारक हो, तो फिर भी आपको जरूरत है, वरना ज्यादातर पैसा जो है वो डॉक्टरों के पास हमारा बर्बाद हो रहा है। 9 रुपए का इंजेक्शन 900 रुपए का बिक रहा है। 1 रुपए की गोली 100 रुपए की बेची जा रही है और उसको खरीदने वाले हम ही आप हैं। जबकि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आखिरी 2 लोग में सिरका से इस्तेमाल कर लेगा वो बीमारियों से महफूज हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बहुत वो बीमारियों से महफूज हो जाएगा। तरीके मुस्तफा को छोड़ देना है असल वजह बर्बादी। तरीके मुस्तफा को छोड़ देना है वजह बर्बादी। इसी से हुई है कौम बेइख्तियार अपनी। और जब तक हम मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को फॉलो करते रहे, यानी कि हम अपने आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को मानते रहे, हम ही सुरखरू थे। ज़मीन भी हमारे लिए, मक्की भी हमारे लिए, चुनी भी हमारे लिए, चुनी भी हमारे लिए, चुना भी हमारे लिए, इसलिए कि जो चीज हमारे नबी की है वो हमारी है। बेशक हक है ना, सब हमारा।
लेकिन इस अंग्रेजी कल्चर ने, फैशन ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। जिन लोगों ने दाढ़ी नहीं रखाई है, एक और बता दो, अगर आपको मर्दाना ताकत में कमी लगती है तो दाढ़ी रखा लीजिए। किसी कुश्ता को खाने की जरूरत नहीं है, किसी सफूफ को खाने की जरूरत नहीं है, किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। दाढ़ी की बरकत से आप अगर नामर्द भी हैं तो मर्द कामिल बन जाए। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। मैं अपने तजुर्बे शेयर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल शेयर कर रहा हूँ। अगर दाढ़ी नहीं है तो दाढ़ी को रखा लीजिए। दाढ़ी के रखा लेने से, इस सुन्नत पर अमल कर लेने से अल्लाह तबारक व तआला मर्द को मर्द कामिल बना देगा। समझे? अब देखिए हमारा खाना पीना बदल गया। हमारा जो खाने पीने का लाइफ स्टाइल है ये चेंज हो रहा है। क्या करते हैं हम? सुबह में उठते हैं तो हम पीते हैं बैट टी। इसको क्या बोलते हैं? बोलो। बैट टी यानी कि बिस्तर पर मिल जाने वाली चाय। बैट टी यानी बिस्तर पर जो हमें चाय मैसर आए, बेगम बना करके ले आए। वैसे बेगम लाती नहीं है, क्योंकि बेगम जो है उनकी खता नहीं है। अगर आपकी बहू सुबह को 10 बजे उठती है सोकर, तो इसमें खता बहू की नहीं है, बल्कि आपके शहजादे की है। बगैर उसकी मर्जी के वो 10 बजे तक नहीं सो सकती, जब तक उसकी मर्जी शामिल ना हो। इसलिए बहुओं से मत लड़ा करो। ये किसी का घर छोड़कर, अपना घर छोड़ करके ये तुम्हारे घर में आई है, तुम्हें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। पराई बेटी को अपनी बेटी मानना चाहिए। घर जन्नत का गहवारा बना। समझ रहे हो? अभी मैं इस पर आऊंगा, लेकिन थोड़ा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा खाना पीना कैसा हो। सुबह में हम क्या करते हैं? सुबह में हम ये करते हैं कि बैठ टी पीते हैं, चाय। जबकि हुक्मा का कौल ये है कि सुबह का नाश्ता बादशाहों के जैसा होना चाहिए, दोपहर का खाना वजीरों के जैसा होना चाहिए, और रात का खाना फकीरों के जैसा होना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं? सुबह में कुछ नहीं खाते हैं, दोपहर में थोड़ा और ज्यादा खाया, और रात को बिल्कुल खाने की खैर ही नहीं करते, खैर ही नहीं छोड़ते। खाने पर जब लगते हैं तो कोई गुंजाइश छोड़ा ही नहीं करते। जबकि मेरे आका मुस्तफा जान रहमत तबीब आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खाने के भूख के 3 हिस्से किए जाएं। एक ग़िज़ा के लिए रखा जाए, एक हवा के लिए रखा जाए, एक पानी के लिए रखा जाए। पहले तो हमारा मुसलमान भाई पेट को तान तान करके खाता है, फिर कहता है मौलवी साहब हमारी रेहा नहीं घूम रही है, हमारी रेहा नहीं घूम रही है, हमको गैस बहुत बन रही है, हमको गैस की एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि आपने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को छोड़ दिया, गुंजाइश ही बाकी नहीं रखी। खाना खाने के बाद 40 कदम चलना चाहिए, 40 कदम टहलना चाहिए, ये सुन्नत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? खाना खाए वहीं लेट गए, खाना खाए वहीं लेट गए। दोपहर का खाना खाने के बाद कैलूला करना चाहिए, यानी कि दोपहर का खाना खाने के बाद आराम करनी चाहिए, कम से कम 10-20 मिनट लेटने की आदत बनानी चाहिए। और रात का खाना खा के लेटना नहीं है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए टहलना है। और टहलते टहलते अगर दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत हो जाए, मुस्तफा जाने रहमत को याद करने की आदत बन जाए, तो ये हमारा टहलना भी इबादत बन जाए। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। बोलो, टहलना भी इबादत बन जाता है। लेकिन हम एक करते नहीं हैं, फिर हम क्या करते हैं? डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, चाहे डॉक्टर, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, इधर का अपॉइंटमेंट, उधर का अपॉइंटमेंट। हम ये नहीं देखते हम कर क्या रहे हैं, हमने अपनी जानों पर क्या जुल्म किया। हम ये समझते नहीं है कि हमने अपनी जान पर क्या जुल्म कर लिया है। आज के हालात ऐसे हैं कि कोई घर ऐसा नहीं है कि जिस घर में गिरह युद्ध ना लगा हो, जहां बार आप हो कायम न हो, जहां
प्यारी माँ बहनों सुनो, आपको एक तैयारी करना है। आपने देखा होगा जब बच्चा सुबह को फजर के टाइम उठता है, नहीं उठता, हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, सिख का बच्चा हो, ईसाई का बच्चा हो, बच्चा किसी का भी हो, सुबह फजर के बाद जब मुअज्जिन अज़ान देता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो जो शीरख्वार बच्चा है जिसको अभी मालूम नहीं है, वो लब्बैक कहते हुए अपनी आंखों को खोल देता है और रोना शुरू कर देता है। क्या बात है। बोलो ऐसा होता नहीं होता? सुबह के वक्त में आप लोगों के बच्चे होंगे, कोई ऐसा बच्चा अगर आपको मिला हो कि जो अभी नासमझ है और फजर के वक्त में सोता रहता हो, तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं दावे और चैलेंज के साथ कहता हूं कि सुबह के वक्त में हर नासमझ बच्चा जो अभी समझदार नहीं है, वो सुबह के वक्त में जब मुअज्जिन पुकारता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो उसके पुकारने से पहले ही उठ करके बैठ जाता है। बेशक। क्यों? क्योंकि हर बच्चा दीने मुस्तफा की फितरत पर पैदा होता है, हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, और इस्लाम की फितरत नहीं है सुबह 10 बजे तक सोना, इस्लाम की फितरत नहीं है। मैंने एक सरदार से मुलाकात की, उससे मुलाकात करके मैंने उससे पूछा कि जरा मेरे भाई ये बताना कि मैंने सरदारों में कोई भीख मांगते नहीं देखा, मुझे सरदारों में कोई भीख मांगते नजर नहीं आता है, इसकी वजह क्या है? उस बंदे ने जवाब दिया, जो कर्म मुसलमानों के थे, जो मुसलमानों का मसीहा उनकी जिंदगी को बदलने के लिए लेकर आया था, वो उन्होंने बदल दिए, हमने उनको अपना लिया। मुसलमान सोता रहता है और हम सुबह को जल्दी उठ जाते हैं। जब तक तेज धूप होती है हमारा काम निपट जाता है, हमारा काम निपट जाता है। मुसलमानों का पैगंबर ये मैसेज देने के लिए दुनिया में आया था कि अपनी रकम, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने भाइयों पर खर्च करने के लिए रखना। मुसलमान इसको भूल गए हैं, हमने इसको याद कर लिया है। हमारे यहाँ अगर कोई सिख, कोई पंजाबी, कोई सरदार दुनिया से चला जाता है तो हम उसके यहाँ रोने के लिए नहीं जाते, बल्कि उसके बच्चों के आंसू को पोंछने के लिए जाते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ होता है कि अगर पड़ोसी की दुकान बहुत बढ़िया चल रही होती है तो हमारी तमन्ना ये होती है कि काश इसकी दुकान ठप हो जाए। सरदारों ने तरीका ये इख्तियार कर लिया है कि अगर उनकी दुकान में आग लग जाए, चोरी हो जाए, धंधा चौपट हो जाए, तो वहां रोने के लिए नहीं आते, बल्कि हाथों को जेब में डाल करके उसकी मदद कर देते हैं और उसका रोजगार वैसे ही फिर से खड़ा हो जाता है। ये काम किसका था? ये काम हमारा था। हमें अपने भाई को हाथ पकड़कर खींचने की जरूरत थी, लेकिन हम टांग खींचने में लग गए। काश हमने अपने भाई को हाथ पकड़कर खींचने की आदत बनाई होती तो आज दुनिया के अंदर निज़ामे मुस्तफा का बोलबाला होता और हर घर में शरीयत मुस्तफा का उजाला होता और कोई गरीब आपको ढूंढे भी नहीं। क्या ये हमारी तारीफ नहीं है कि कसरत कसरत के ताज मदीने की गलियों में ठोकरें खाते हैं? क्या ये ऐसे हो गया था? ये ऐसे नहीं हुआ था प्यारे। और सुनो, ये ऐसे नहीं हुआ था। एक मरतबा क्या हुआ कि 72 घरों में फाके का आलम था। 72 घरों में फाके का आलम। इतने में किसी के यहां से थोड़ा सा गोश्त आ गया। एक सहाबी के दरवाजे पर जब वो गोश्त पहुंचा तो उसने कहा कि मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे पड़ोसी को है। दूसरे दरवाजे पर पहुंचा तो उसने कहा मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे पड़ोसी को है, आप वहां दे दें। तीसरे साहबी के दरवाजे पर पहुंचा, उन्होंने कहा मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे दूसरे भाई को है। इसी तरीके से मदीने तैयबा की हर गली में वो गोश्त का टुकड़ा घूमता था और पलट कर उसी दर पर आ गया।
में पानी छोड़ दिया गया, 72 प्याले बनवा दिए गए और हर दरवाजे पर प्याला कटवा दिया गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जश्न गौसे वरा अल्लामा डॉक्टर नाज़िम रज़ा साहब बरेली शरीफ। अब क्या हो रहा है कि बच्चे को मां थपकी दे दे कर सुला रही, कह रही है सो जा, बाहर चुड़ैल है, बाहर पुलिस है, झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रही है, अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा रही है। और जब यही बच्चा जवान होकर के अपनी बेगम की खिदमत में लग जाता है तो कहती है मेरा बेटा मुझसे झूठ बोलता है, मेरा बेटा मुझसे झूठ बोलता है। ये झूठ बोलने की ट्रेनिंग उसी मां ने दी थी जो सुबह फजर के वक्त फितरत के उसूल के खिलाफ उस बच्चे को अपनी नींद के खातिर धमकियां दे देकर सुला रही थी। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि जो अभी नासमझ बच्चा अल्लाह के पैगाम को समझकर सुबह जल्दी उठ गया है, उसी के साथ वो भी उठ जाती, वज़ू करती, अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रख देती और जब वो फजर की नमाज पढ़ती, अपने घर वालों के लिए नाश्ते की तैयारी करती, चाय पानी का इंतजाम करती, ससुर के आगे अपनी प्याली को लेकर के जाती, सास के आगे चाय लेकर के जाती, जेठानी के आगे नाश्ता लेकर के जाती, अपने घर के हर फर्द की खिदमत करती। लोग ये कहते कि मेरी बहू मेरे घर की रानी है। सुभान अल्लाह। बेशक वो क्या रहा है? वो ये रहा है कि सबसे बड़ा घरों में दंगे का जो सबसे बड़ा सबब, घर के अंदर जो सबसे बड़ा सबब है लड़ाइयों का, वो देर से सोकर के उठना। मेरी प्यारी बहनों सुनो, जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं, वो इस फकीर की, अपने इस भाई की बात को अपने दामन में ससुराल को फिदा होते वक्त बाहर निकल ले जाना। और अगर शिकवा हो तो इस फकीर को याद कर लेना। अगर तुमने फजर की नमाज पढ़ के अपने ससुराल वालों की खिदमत करने की आदत डाल ली तो इंशाअल्लाह तुम्हें कभी रोना नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी, तुम्हारी ससुराल में हमेशा हंसी और खुशी कायम रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आजकल ये हो रहा है कि ज्यादातर औरतें बीमार हो रही हैं। लाइव दिखाना है कुर्सी में, बीमारी तो की मुझे वजह लगता है क्या है? आपसे बेहतर के औरत की बीमार होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो ज़हनी टेंशन में रहती है। मेरी बात कई डॉक्टर से हुई, डॉक्टर्स के पैनल से हुई, उन्होंने बताया कि औरतों के जो बीमारी की सबसे बड़ी वजह है, आज औरतों की बीमारियां बढ़ रही हैं, उनको परेशानियां बढ़ रही हैं, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि औरत खुश ना रहे। अब औरत खुश कैसे रहेगी? औरत खुश तब रहेगी जब उसके ससुराल वाले उसको खुश रखेंगे, उसका खामिन उसको खुश रखेगा। और औरत तब खुश रहेगी जब वो पहले मुस्तफा जाने रहमत को खुश करेगा। जिसने अपने नबी के खुश करने का इंतजाम नहीं किया, जिसने अपने रब को खुशी और नाराजगी का ख्याल नहीं किया, यकीन जानिए उसको पूरी जिंदगी रोना है। और जो अपने रब की खुशी का ख्याल रखेगी कि मेरा रब नमाज पढ़ने से खुश होगा, मेरा रब अपने ससुराल वालों की खिदमत करने से खुश होगा, मेरा रब अपने ससुराल वालों का ख्याल रखने से खुश होगा, मेरा रब अपने शौहर की फरमाबरदारी करने से खुश होगा, तो ऐसी औरत ज़हनी तौर से खुश रहेगी और उसको खुशी की वजह से बीमारियां नहीं लगेंगी।